So again, very good evening, dear friends, and this is Professor Sachin Deshpande. And for me, it is an opportunity for, at least in a virtual mode, establish a kind of a conversation with you guys. And the medium happens to be the course called as Database Management System. And as far as an university curriculum is concerned, this course has been introduced at in two different levels. For computer IT, it happens to be in semester 4, and for some other branches, it is also offered as a part of a semester 6 curriculum. Very interesting course, and it's needless to talk about the importance and significance of data in front of the generation like you. But then these are some points you just try to understand. We are talking about data being today's fuel, is very precious thing, and the next and current century is totally driven by data, and the significance of data is to such a level that it allows every individual, the decision makers, the organization to just understand the insight of the processes, take appropriate decisions, and that is the reason the ultimate goal happens to be and transformation of data to information, and information to insight, and insight to the wisdom. So, my dear friends, the course database management system keeps revolving around the organizational aspect of the data, and how easily and how efficiently the data which resides in a kind of an storage can be retrieved as per the requirement, and can be made available to the decision makers for decision makers to take appropriate decisions. So, as we know that it's very fierceful competition happening outside, and the decision makers are absolutely in the hunting mode, starving for right information at right time, and so that they can employ right strategy for opening a new chapter of success. So that is where the data comes into the picture. And in general, very like from uh, the textbook perspective, we can say that it allows a business keep turning, and that's the reason this is basically the course has been introduced. Now, as far as a definition is concerned, I hope I'm reaching to you. Just please acknowledge. Am I there? Yes, sir. Okay, sure. So, as far as the definition is concerned, and when it comes to a database management system, one can easily make out. So, database is a repository, is a collection of data, and database management system is a system which is responsible for managing all aspects of the data. So, in the simplest form, and even on the basis of the common sense, we can settle down with this kind of an definition, and then to some extent it is also true. But generally, if we take a part of, typically speaking, some reference books or textbooks, so they expect one to understand what was the historical perspective, what was the system existing prior to the conception of this idea of database management system and database, and then what were really speaking the difficulties that possibly might have prompted the development of the concept, and that basically is how the system keeps on evolving. As long as the need is not felt, no new invention is going to happen. The need has to be there, and that is the reason we call need as a mother of invention. So, and from exam perspective also, they keep asking sometimes, okay, what are the drawbacks of traditional file processing system? So that is the reason this discussion is very important, I believe. Uh, as far as today's time is concerned, some aspects appears to be absolutely obsolete, but then we need to understand that is the reason we say that okay, the history teaches us great lessons.
and we should learn from the history. So coming to an historical perspective, so I'll be talking about a historical perspective. And by this, I mean we are talking about some system which used to be there in practice prior to the conception of this idea, database management system. So, dear friends, if you allow me to just highlight the characteristic of this system called as a file processing system. So, I will say that typically in this environment, in those days, every application used to be as an independent application. So every application is regarded as independent of other applications. And typically, there exists a data which is recorded in form of files, and the files resides in the secondary storage. For example, hard disk in the today's date, or SSDs. Okay, or you may think of even cloud storage. So some files are maintained where the data is there, records are there, holding some significance from organization perspective, and so on and so forth. So to perform operations on these data, to make take a meaning out of it, uh, the developers used to write down the applications, and every application, okay, used to be an independent application, even if it is pertaining to the same organization, same business enterprise. What exactly this means? इसका मतलब क्या है exactly? तो ये एक ओके इलस्ट्रेशन के लिए ऐसा सोचो कि एक इंस्टीट्यूट के लिए एक the need was felt, and I'm telling you this is an historical perspective. So you are supposed to take this in a absolutely right spirit. So I'm taking you to that era where automation was just started. Now automation means computer यूज ही करते नहीं थे, सारा कुछ मैनुअल सिस्टम होता था, जो भी इंफॉर्मेशन डेटा होता था एक रजिस्टर्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता था based on papers and this and that. So you need to think of that kind of scenario. So uh, you'll find this easy to understand. So ऐसा सोचो कि अभी ये इंस्टीट्यूट ने एक तय कर लिया कि भाई एक थोड़ा सा कंप्यूटराइजेशन कर लेते हैं, ऑटोमेशन करते हैं. So what they do is that they possibly will outsource this to some experts, some group of experts, small enterprise software company जो है उसको ये आउटसोर्स कर दिया कि भाई हमारा अभी कॉलेज का ऑटोमेशन होना चाहिए. So these guys, some people, those who are good in coding and development of an application, they will come, they will talk to the the role players. So let us assume that ये typically ऑफिस जो होता है, रजिस्ट्रार्स ऑफिस जो होता है, कॉलेज का जो ऑफिस होता है, जो जनरली बाकी सब टिपिकल प्रोसेसेस देखता है, उसका ऑटोमेशन करने की बात हो रही है. तो ये बंदे जो सॉफ्टवेयर कंपनी के बात करेंगे, जो काम कर रहे हैं कॉलेज के लिए, रजिस्ट्रार ऑफिस में है, क्लर्क्स है, और डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, काफी सब. And we'll try to understand their requirement, and we'll try to also understand how exactly the current system works, and what kind of a data is getting recorded in form of papers on the paper. So they will locate the device and they will develop the application. What now I'm telling you is that this application will be absolutely pertaining to the requirements of the registrar's office. So they will decide कि अरे यार ये इसके लिए मुझे हार्ड डिस्क में या उन इन दोज डेज टेप ड्राइव्स पे के मैग्नेटिक टेप्स पे या जो भी है फ्लॉपीज पे जो आपको पता भी नहीं रहेगा. सो ऐसे सब स्टोरेज मीडिया पे कुछ फाइल्स को मेंटेन करेंगे, जैसा एम्प्लॉय डेटा, स्टूडेंट डेटा, कोर्स डेटा, रजिस्ट्रेशन डेटा एंड ब्ला ब्ला ब्ला. So they will okay punch the data, and they will create those files, and then they will okay develop this kind of an applications by using an appropriate software tool, and they will do the testing rigorously, and some okay uh, on some day this application will get deployed and register office, obviously okay the users of this office, something like the clerks and registers will start using it.
They will share the experience with these guys coming from the software industry, and some tuning will take place, and final deployment takes place. And then, okay, it's a great relief to this registrar's office people, and they start this. Do you able to understand the scenario, guys? Am I there? Am I reaching to you? Are you able to establish a connect? Hi, hello. Yes, sir. Okay, okay. So I sincerely request you guys, okay, just keep on responding me, because this is a very first session, Yes, and sir. please start. Thank you. So ऐसा हो गया, और ये बंदे खुश हो गए रजिस्टर ऑफिस वाले, फिर कॉलेज ने सोचा यार चलो अभी अकाउंट्स रिलेटेड जो फीस जमा खाता ये वो एम्प्लॉय की सैलरी फलाना जमा था, बाकी के खर्चे खर्चा पानी ये सब कुछ, तो अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए भी यही सोचा गया कि चलो इसका भी एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, तो अपना काम और आसान हो जाएगा, और जो टिपिकली ह्यूमन रिलेटेड जो एरर्स होते हैं, वी कैन मैनुअल एरर्स, तो अवॉइड किए जा सकते, तो अगेन वही प्रोसेस है कि बंदे आएंगे, दे विल टॉक टू ऑल दोज रोल प्लेयर्स बिलोंगिंग टू द अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट है, कैशियर है, और कुछ क्लर्क्स है, एंड सो एंड सो फोर्थ, और फिर दे विल अंडरस्टैंड कि अभी तक वो डेटा कैसा मेंटेन किया जाता था, और किस फॉर्म में मेंटेन किया जाता था, क्या क्या डेटा मेंटेन किया जाना चाहिए, सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद में ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी वाले बंदे, दे विल स्टार्ट ओके डेवलपिंग दिस एप्लीकेशन बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट टूल्स, फिर टेस्टिंग होगी, डिप्लॉयमेंट होगा, एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा, ट्यूनिंग होगा, और फाइनली एक दिन बोला जाएगा कि चलो अभी ये फुल फुल प्रूफ तो नहीं कह सकते, लेकिन ओके अच्छा खासा एप्लीकेशन बन गया, तो अकाउंट्स वाले लोगों, तुम लोग अभी शुरू कर दो इसका यूसेज, तो दे विल ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो चीज मैं बता रहा हूँ, कि जब ये एप्लीकेशन डेवलप किया जा रहा है, तो ये अभी ये बंदे जो सोच रहे हैं यार अकाउंट्स के लिए क्या क्या डेटा लगेगा, तो उनको पता चल रहा है कि पता चलता है कि एम्प्लॉय की जानकारी चाहिए, ठीक है, उसके लिए एक फाइल बनाते हैं, स्टूडेंट की जानकारी चाहिए, उसके लिए एक अलग फाइल बनाई जाएगी, ट्यूशन फीस related and expenses and financial okay, expenses, all those audit and this and that, उसके लिए फाइल बनती चलेगी. What I am trying to tell you that now this accounts application is also happening for the same organization, but then in those days, for an historical perspective file processing approach, every application used to be an independent, is regarded as an independent of other. So the consequences of this is कि जो रजिस्टर ऑफिस के लिए एप्लीकेशन बन के चल रहा है चंगे, मस्त चल रहा है, उसके एप्लीकेशन के रिलेटेड जो फाइल्स है जिसमें एम्प्लॉय डेटा है मेरे भाई, ऑलरेडी पड़ा है, लेकिन ये अकाउंट्स वाले लोग बोलते हैं भाई वो उसका जो तरीका है ना एम्प्लॉय डेटा रखने का, मेरे तरीके से थोड़ा सा अलग है, तो मुझे मेरी फाइल अलग से चाहिए, तो दैट इज रीजन अगेन सेम इंफॉर्मेशन टू सम एक्सटेंट विल गेट रिपीटेड इन द एम्प्लॉय डेटा फाइल, ओके, of the accounts department, and in the student data file of the accounts department, and so on and so forth. So थोड़ा redundancy हो रहा है. So ये जो एक nature और characteristic थी file processing approach की, so that was one of the reason they started okay facing the music. They used to face this music, typically some problems, potential drawbacks. And once you understand this aspect of an file processing approach, we can locate this. Now we are ready to discuss the typical drawbacks, what they used to experience in that. And the word of caution is, my dear friends, हम लोग इसे ना पोटेंशियल ड्रॉबैक्स कहते हैं. इसका मतलब है कि भाई थोड़ा इधर उधर, थोड़ा डिग्री ऑफ इग्नोरेंस, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस यूज टू बी दिस ड्रॉबैक्स. ऐसा नहीं है कि फाइल ओरिएंटेड सिस्टम या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसे हम लोग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी कहा है, ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. सो ये एकदम बकवास था ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा इधर उधर डिग्री ऑफ इग्नोरेंस यूज टू कैन यूज टू बी कॉज डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ एन प्रॉब्लम्स. सो पहला प्रॉब्लम वो फेस क्या करते थे, डेटा रिडेंडेंसी. और रिडेंडेंसी सबको पता है, एक ही चीज
अगर रिपीटेडली स्टोर की जाएगी, एक्सेस में रहेगी फॉर नो रीजन, तो उसे रिडेंडेंसी कहा जाता है. So it was possible that same information may be duplicated in different files. This leads to data redundancy and obviously results in memory wastage. क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि रजिस्टर ऑफिस का भी जो एप्लीकेशन है उसमें एम्प्लॉय डेटा उसके फाइल में अलग से, अकाउंट के लिए जो नया एप्लीकेशन बनाया गया है उसको भी एक फाइल लगती है जहां एम्प्लॉय की जानकारी चाहिए, तो उसको अलग मेंटेन किया जा रहा है. सो बिकॉज एवरी एप्लीकेशन इज इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन, सो दिस लीड्स टू दैट पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा रिडंडेंसी. तो मेमोरी कंजम्पशन का इशू रहा और उस दौर में आई एम टॉकिंग अबाउट ओके दोज डेज, मे बी 4-5 decades बैक, तो memory was an expensive okay, it was not as inexpensive as like today. So memory wastage was the area of concern. सब कार्य यार memory मस्त precious है. So ये एक प्रॉब्लम था और सबसे उससे भी worst problem, data redundancy used to lead to something called as a data inconsistency, which cannot be tolerable because okay, this will lead to some real life problem. And what is this data inconsistency? कि एक ही one piece of data recorded at multiple places if no longer agrees with each other. So that will obviously lead to something called as a data inconsistency. And the simple example what normally we quote is, let us assume that the exams जो सेल होता है, yeah, I will take another example for you to better understand. Let us assume that okay, there exists something called as HR department, human resources, generally is responsible for okay looking after the aspects, some important aspects of the employees. तो जनरली कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो एचआर डिपार्टमेंट इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट टू इंटरैक्ट विद. एंड जब भी ये बंदा छोड़ के जाता है ऑर्गेनाइजेशन, तो एचआर डिपार्टमेंट इज सपोज टू लुक आफ्टर ओके द काइंड ऑफ प्रोसेसिंग एंड फाइनली रिलीविंग द एम्प्लॉय बाय कंप्लीटिंग ऑल द डूइंग द कंप्लायंसेस जो भी करना है. तो ये एचआर डिपार्टमेंट को एक जानकारी मिलती है लेटेस्ट और उनका उनका एप्लीकेशन अलग से चल रहा है, तो एक बंदा छोड़ के जाता है. सो एम्प्लॉय लीव्स द ऑर्गेनाइजेशन. तो एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाएगा तो एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय फाइल जो है, एम्प्लॉय डेटा फाइल जो है, उसमें से ये एम्प्लॉय के डेटा के सामने एक टैग लगा दिया उन्होंने कि द एम्प्लॉय इज नो लॉन्गर वर्किंग विद द ऑर्गेनाइजेशन, इज नो लॉन्गर एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आर यू गेटिंग दिस? आर यू देयर? Yes, हेलो. sir. ओके, ठीक है. सो अकाउंट्स डिपार्टमेंट और ये जो बंदा छोड़ के गया, एचआर डिपार्टमेंट ने अपना काम कर दिया, लेकिन ये इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है, कनेक्टिविटी का सवाल नहीं है, ये इनके अलग फाइल्स है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अलग फाइल्स है. ये जानकारी अकाउंट डिपार्टमेंट तक पहुंची नहीं है, ऐसा सोचो कि नहीं पहुंची फॉर सम रीजन, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए तो ये एम्प्लॉय फिर भी काम कर रहा है, सो एम्प्लॉय स्टिल इज वर्किंग एंड वर्किंग, ये उनका इंप्रेशन रहा. एंड व्हाट दे डू इज दैट दे ड्रॉ द सैलरी. सो दिस इज एन इनकंसिस्टेंसी एंड दिस विल, बिकॉज यहाँ एम्प्लॉय का स्टेटस इज नॉट वर्किंग और अकाउंट्स के फाइल में एम्प्लॉय डेटा जो फाइल है वहाँ स्टेटस स्टिल लाइव है, एम्प्लॉय स्टिल विद द ऑर्गेनाइजेशन. सो the status of an employee at one place says that he is not an employee, and in the another file pertaining to the same organization says that the employee is still working. He is a inconsistency, and this will lead to, typically speaking, the trouble, the real life problem. It may happen that the accounts department will end up drawing the salary and depositing salary in the bank. So that will be dangerous and will be financial loss to the ऑर्गेनाइजेशन. हो सकता है, पॉसिबिलिटी है.
तो ये inconsistency cannot be tolerated. So this used to be some potential drawback. और एक होता था difficulty in accessing the data. अभी ये जो difficulty in accessing the data है, ये बड़ा बड़ा एक interesting part है. तो what I will tell you is that कि किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करना है, एक एप्लीकेशन को डेवलप करना है, आपको बोला गया कि ओके लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ कॉलेज के लिए, ऐसा अगर आपको टास्क लगा तो आप थोड़े मन से थोड़ी ना करेंगे. यू आर नॉट सपोज टू ओके जस्ट ओके think randomly, apply your experience and develop this system. You actually need to go to library, understand, do okay, like an establish kind of a conversation with the role players in the library, like librarians, वहाँ के cashiers, not cashiers, clerks and बाकी staff जो है जो देखभाल करता है सारे ओके रीडिंग जो मटेरियल एंड रिसोर्सेस होते हैं. सो ये बंदों से बात करके आपको समझना है कि भाई अभी अभी का सिस्टम कैसा चल रहा है और उसको मुझे अगर ऑटोमेट करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा. तो इट्स दिस काइंड ऑफ एन प्रोसेस. सो आपको रिक्वायरमेंट्स समझना पड़ेगा. सो आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जब बनाया तो ये सारे यूजर जो है उनका पर्सपेक्टिव यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड योर सिस्टम should be fetching the data from the variety of files, अलग अलग जो फाइल्स है. So some journal रिसर्च जर्नल्स जो है उनके एक अलग फाइल बनाई गई. सो टेक्स्ट बुक्स जो है, लेट अस अज्यूम दैट उनकी एक अलग अलग फाइल है. और कुछ रेफरेंस है, रेफरेंस मटेरियल. फिर सप्लायर जो सप्लाई करता है, पब्लिशर जो है, ये सारी जानकारी होती है. सो ये सारे फाइल्स है. व्हाट आई एम टेलिंग यू, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जब डेवलप होती है तो आपको ये रोल प्लेयर्स के सामने ऐसे ऑप्शन देने हैं कि मैंने ये बटन दबाया तो मुझे सारी टेक्स्ट बुक की जानकारी मिलेगी. आई कैन सर्च द टेक्स्ट बुक ऑन द बेसिस ऑफ सर्चिंग. ये आपको जानकारी मिली रोल प्लेयर से, टेक्स्ट बुक, और आपने उसको ऑटोमेट भी कर दिया, आपके सॉफ्टवेयर में डाल दिया, आपके एप्लीकेशन में सपोर्ट है. तो सर्चिंग अ टेक्स्ट बुक ऑन ऑथर, सर्चिंग अ टेक्स्ट बुक एज पर टाइटल, सर्चिंग अ टेक्स्ट बुक ओके पब्लिकेशन, ऐसा सब कुछ आपने प्रोवाइड किया था. लेकिन यार ये जब डेवलप होता है ना एप्लीकेशन, तो यू कैन नॉट एंड नो वन कैन एंटीसिपेट एवरी पॉसिबल क्वेरी विच में अराइज इन अ फ्यूचर. आर गेटिंग दिस कि आगे चल के ये काइंड काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट आएगी. ये एंटीसिपेट करना 100% फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट भी मुश्किल होता है. तो ऐसा सोचो कि आपने आपके सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन बना दिया कि तू ऑथर का नाम डाल तो तुझे ऐसे सारे टेक्स्ट बुक मिलेंगे जो ऑथर ने, ये ऑथर के नाम से ये बंदा ऑथर है टेक्स्ट बुक का. टाइटल डाल, सर्च कर सकता है. पब्लिकेशन डाल, सर्च कर पाएगा. आर गेटिंग दिस. लेकिन आप सोचो कि कंटेंट वाइज, कि मुझे कंटेंट वाइज देखना है, ईआर डायग्राम फॉर एग्जांपल, ईआर डायग्राम, ये कौन से टेक्स्ट बुक में मुझे मिलेगा, ये कंटेंट वाइज सर्च हमने डाला नहीं. क्योंकि उस जब ये एप्लीकेशन बना तो रोल प्लेयर्स ने ये कहा ही नहीं कि भाई ऐसी भी रिक्वायरमेंट यूजर की आ सकती है. तो एंटीसिपेट ये क्वेरी नहीं की गई थी. तब चल के अभी तो डेटा तो है अपने फाइल्स में, लेकिन अभी बंदा बोल रहा है बॉस मुझे सर्च करना है ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट्स लाइक ईआर डायग्राम, लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर में वो सपोर्ट नहीं है. तो ये जो सिचुएशन आती है, स्पर ऑफ द मोमेंट क्वेरी जो आती है, रैंडम क्वेरी जो पहले एंटीसिपेट ही नहीं की गई, तो ऐसे क्वेरी के लिए हम लोग कहते हैं कि यार ये सपोर्ट नहीं है, तो डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा. डेटा है लेकिन हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे. व्हाट द पॉइंट. Yes,
ये एक ड्रॉबैक उस दौर में होता था, पॉसिबिलिटी होती थी, पोटेंशियलचा अर्थ म्हणजे पोटेंशियल का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है भाई, ऐसा होने का चांस है. Limited data sharing, I prefer to call it as a data isolation. In standard books, you'll find that they call it as a data isolation. But then this data isolation is a potential drawback from the new application perspective. So new application perspective का मतलब I will take you to the same scenario what I was discussing prior. कि एक academic application already बन चुका है, already existing. Let us assume that this is already existing, and this is just started डेवलपमेंट ऑफ दिस. तो ऐसा सोचो कि ये तो ऑलरेडी था और ये अभी जस्ट स्टार्ट हो गया. तो ये बंदों ने रियलाइज किया कि यार एम्प्लॉय डेटा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए जो चाहिए वो तो एम्प्लॉय डेटा ऑलरेडी है, लेकिन ये फाइल बिलोंग करती है एकेडमिक एप्लीकेशन, इट बिलोंग्स टू एकेडमिक एप्लीकेशन. उसका नाता एकेडमिक एप्लीकेशन के साथ जुड़ा है, ये फाइल उसको बिलोंग करती है. और ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भी वही एम्प्लॉय डेटा चाहिए, लेकिन अलग फॉर्म में चाहिए, या और कुछ अलग डेटा भी चाहिए जो शायद एकेडमिक एप्लीकेशन को ना लगे. आई एम गेटिंग दिस. सो ये जो बंदे हैं ना, जो अभी अकाउंट्स एप्लीकेशन डेवलप किए जा रहे हैं, वो सोचेंगे यार छोड़, वो अलग है, इसका फॉर्मेट अलग है, वो डेटा है लेकिन मुझे अलग तरीके से चाहिए. तो दे विल ऑल्सो एंड अप by having their own independent employee data file. So the data was already existing, and these guys also end up again creating same new file, possibly punching the data again, putting the same duplication of efforts. तो ये जो सिनेरियो है, इसे हम लोग कहते हैं कि डेटा आइसोलेशन है. यार डेटा तो था, एम्प्लॉय डेटा तो था, लेकिन वो आइसोलेटेड था, वो नया एप्लीकेशन उसको यूज नहीं कर पाया, तो आइसोलेशन. तो इसे हम लोग बेसिकली के डेटा आइसोलेशन कहते हैं, और ये भी एक प्रॉब्लम था. So these are some of the problems. I will repeat: data redundancy, same piece of information repeated multiple times in the collection of files. These are data redundancy. प्रॉब्लम क्या है? तो मेमोरी वेस्टेज है. ठीक है, वो उतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रिडंडेंसी के वजह से डेटा इनकंसिस्टेंसी का चांस ज्यादा बनता है. कि if the same piece of data recorded at multiple places no longer remains same, no longer agrees with each other, this is called as data inconsistency. Boss, this cannot be tolerated. This will lead to a real life problem. Then the another problem what we have discussed is difficulty in accessing the data. Difficulty in accessing in data means spur of the moment random query. यार पहले सोचा नहीं था कि ऐसा भी यूजर की रिक्वायरमेंट रहेगी, लेकिन वो तो अभी बोल रहा है मुझे ऐसा डेटा चाहिए. तो वो तो पहले हमने एप्लीकेशन डेवलपमेंट के टाइम पे सोचा ही नहीं था. तो ये रैंडम क्वेरीज को टैकल करने का जो सपोर्ट होता था उतना नहीं था ट्रेडिशनल अप्रोच में. लिमिटेड डेटा शेयरिंग या डेटा आइसोलेशन. डेटा तो है, लेकिन नया एप्लीकेशन जो डेवलप किया जा रहा है उसके लिए वो काम का नहीं है, क्योंकि शायद फॉर्मेट अलग है, या तो जो डेटा चाहिए वो उससे ज्यादा है, समथिंग लाइक दिस. तो डेटा आइसोलेशन. वन मोर प्रॉब्लम यूज टू बी इंटीग्रिटी प्रॉब्लम. सो ये भी एक पोटेंशियल ड्रॉबैक हुआ करता था. इंटीग्रिटी का मतलब है डिग्री ऑफ करेक्टनेस, वायबिलिटी. सो इन डेटा जो वायबिलिटी होती है, डिग्री ऑफ करेक्टनेस होता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्रोग्राम में एक वॅलिडेशन डालते हैं की ये सही है नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग इफ एल्स डालते हैं सगळ्यात सोप्या भाषेमध्ये. एकदम आसान तरीका अगर मैं बयां करूं, तो हम लोग इफ एल्स डालते हैं. अगर लेट अस अज्यूम दैट एज ऑफ अ पर्सन इज लेस देन 18, तो वोटिंग नहीं कर पाएगा, समथिंग लाइक दिस. इज नॉट अलाउड टू ड्राइव फोर व्हीलर, समथिंग लाइक दिस. एल्स एंड so on and so forth. So this is how we try to validate basically, okay, check the validity of the data. So अभी integrity का problem क्या है
कि जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कि जो इंटीग्रिटी का जो क्राइटेरिया है वो शायद स्टैटिक ना रहे, अलग अलग रहे। तो जब हमने एप्लीकेशन डेवलप किया, हमने इफ एल्स डाल दिया, हमसे कहा गया था कि बंदा, लेट अस अज्यूम दैट कि उस दौर में 100 मार्क्स का टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 100 हुआ करते थे। तो जो भी एग्जामिनेशन होती थी 3 घंटे की, 3 आवर्स एंड 100 मार्क्स के लिए होती थी। और द रेंज यूज टू बी 0 से लेकर 100। तो कोई बंदा 100 ले रहा है तो वर्स्ट केस में कोई बंदा अपियर ही नहीं कर रहा है, उसको कुछ लिखा ही नहीं उसने, तो 0 मार्क्स मिल रहे, तो ये वैलिड रेंज है। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या हुआ कि मार्क्स, कोर्स के अंदर मार्क्स की जब बात चलेगी, मार्क्स इन अ पर्टिकुलर कोर्स। हाँ, तो marks scored by student in a particular course, the range obviously used, just assume that used to be 0 to 100. अभी बाद में the regulatory body या यूनिवर्सिटी ने okay changes this to 0 to 8। तो अगर ये इफ एल्स के अंदर ये जो कंडीशन लिखी गई थी कि व्हाट इज वैलिड, अच्छा ये केस में 0 to 100 के केस में एनीथिंग लेस देन 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल, इनवैलिड मार्क्स, एनीथिंग अबव 100 विल बी इनवैलिड। नाउ इफ दैट क्राइटेरिया डजंट चेंजेस इन द एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर के अंदर ही इंप्लीमेंट किया गया, तो अगर वो चेंज नहीं हुआ और यहाँ गलती से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गलती से किसी ने पंच करते टाइम 90 मार्क्स डाल दिए ये केस में, तो पहले के रूल के हिसाब से वो वैलिड हो जाएगा एंड दिस विल लीड टू एन इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। वन मोर एस्पेक्ट इज नेगेटिव मार्क्स भी आ गए, तो पहले नेगेटिव मार्क्स नहीं थे, अभी आ गए। तो अभी नेगेटिव मार्क्स किसने डाले, तो पहले वाली सिस्टम बोल रही बॉस ये अलाउड नहीं। तो ऐसे सारे जो डिग्री ऑफ करेक्टनेस के इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स दे यूज टू फेस in the case of dynamic environment where constraints are likely to change, criteria are likely to change. Got the point? तो उसको इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट हुआ करता था, क्योंकि प्रोग्राम चेंज करना पड़ता था उस दौर में, कि वो प्रोग्राम के अंदर इफ का कंडीशन चेंज करो जाके, विच यूज टू बी डिफिकल्ट एंड वेरी कॉस्टली अफेयर। मीन्स जो कंपनी ने, आप लेट अस अज्यूम दैट आपके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है और वो यूज कर रहे हो आप, और अभी आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई और वो कंपनी को बोलते हैं कि यार थोड़ा कस्टमाइजेशन चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हुई, तो आपको तो चार्ज लगाएगा। इट डजंट कम्स ओके फ्री ऑफ चार्ज। सो ऐसा होता है, तो इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स हुआ करते हैं। आर यू ओके एंड आर यू देयर विथ मी? प्लीज लेट मी नो। yes sir. सारे प्रॉब्लम्स है। अभी ऑटोमिसिटी प्रॉब्लम का मतलब, ऑटोमिसिटी का मतलब है ऑल और नन। तो इफेक्ट वाइज ट्रांजेक्शन जो होते हैं, डेटा डेटा ट्रांजेक्शन्स, तो उसका इफेक्ट मुझे ऑल ओवर, एक तो यूजर को एक फील आए कि मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया, और अगर नहीं हुआ तो यूजर को ऐसा फील आए कि ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। बीच वाली स्टेज का कोई मतलब नहीं रहता। मीन्स मैंने अगर मेरे अकाउंट्स पे ऑपरेशन किया है, ऑपरेट माय अकाउंट, एंड आई एम ट्रांसफरिंग ओके सम फंड टू माय फ्रेंड, तो दैट अमाउंट शुड गेट डिडक्टेड। अगर मैंने 20,000 रुपए ट्रांसफर किया मेरे फ्रेंड को, तो मेरे अकाउंट के बैलेंस में से 20,000 कम होना चाहिए और मेरे दोस्त के अकाउंट बैलेंस में 20,000 जमा खाता होना चाहिए। तो उसे ऑल कहेंगे।
पूरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ कि मेरे अकाउंट से तो निकल गया और उसके अकाउंट में जमाइश नहीं हुआ, तो ये ओके लोचा है, मींस दिस ऑब्वियसली इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यूज्ड टू बी देयर, ये एक्सपीरियंस किया करते थे। एंड ये ऑल और नन की गारंटी उस दौर में मुश्किल थी देना। इन, और अगर देनी है तो दे यूज्ड टू टेक utmost केयर। some ignorance used to cause this problem, all or none transactions fail हुआ फेल होते थे, फिर उसके consequences and this and that, are you getting this? तो इसे ऑटोमेसिटी प्रॉब्लम कहते हैं। और ये पोटेंशियल ड्रॉबैक हम लोग कहते हैं कि उस दौर में होता था। फिर कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज का भी वही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रिश्ता बहुत करीब का है। कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज का मतलब है कि मल्टीपल यूजर्स अगर सेम पीस ऑफ डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाउ योर सिस्टम शुड हैंडल इट। सो एक एक अकाउंट है और उसका बैलेंस 2 लाख है और जॉइंट अकाउंट होल्डर्स है। तो दोनों भी ऑपरेट कर सकते हैं, ए एंड बी। ए ने कुछ पैसे निकाले और साइमल्टेनियस अटेम्प्ट हो रहा है, ऐसा सोचो कि दो बंदे अलग अलग टर्मिनल पे बैठ के, और आजकल तो आप एटीएम आप सोच सकते हो ऑनलाइन, ओके, ऑन टिप ऑफ योर फिंगर मोबाइल के साथ भी किया जा सकता है ऑपरेट। तो सोचो कि अगर ये बंदा एक 20,000 रुपए निकालता है और उसका जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है, तो ये 20,000 निकलने के बाद में ऑब्वियसली ये जो बैलेंस है वो 1,80,000 होना चाहिए। लेकिन ऐसा एज्यूम करो कि ये साइमल्टेनियसली अगर हो रहा है, ये बंदा दूसरे टर्मिनल से कर रहा है ऑन सम डिफरेंट प्लेस, और वो ट्रांजैक्शन के लिए भी बैलेंस अगर 2 लाख ही दिखाई दिया, तो क्या होगा कि बोथ ऑफ देम दे विल एंड अप withdrawing successfully to 20,000 rupees, and only what we can say, the acknowledgement is given only for one withdrawal of 20,000 rupees. So this balance will get reduced to 1,80,000. In fact, it should get reduced to 1,60,000, because okay, both the joint holders, they are reduced, they have withdrawn this 20,000 successfully. तो ऐसे केस में अगर इसका बैलेंस 1,80,000 हो गया इन प्लेस ऑफ 1,60,000, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो डूब गई। तो ये इसे कॉन्करेंट एक्सिस एनोमलीज, एनोमलीज का मतलब है डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज, सम काइंड ऑफ एन एबनॉर्मलिटी इज नथिंग बट एन एनोमलीज। तो ये हुआ करती थी क्योंकि कुछ सपोर्ट नहीं होता था अपने एप्लीकेशन में, तो दे यूज्ड टू फेस द म्यूजिक ऑफ दिस एंड दे लेबल्ड दिस as one of the possibility, one of the potential drawback called as a concurrent access. So this also happens to be okay, the drawback and potential drawback and security problems. Now, for your generation, I should not much talk about any security problems. And in today's date, security is one of the major concern, and you have lot of okay openings there if you do good kind of an database certifications and security related certifications, and some machine learning and AI related certifications. And if you build up your profile, so you will find that okay, after you complete your final year, there will be some enterprises, companies waiting for you, your profile. You should think of developing your profile. So security related problems, okay, unintentional uh, uh, attempts getting successful, introduced, so intrusion happening, someone able to intrude, break, breach the security, gain an access to the data, play with it, do some malicious changing and changes, and so on and so forth. So
और from वहाँ अगर सपोर्ट नहीं किया गया तो they used to face this music also security problem. So in a nutshell, these are basically okay, 8 potential drawbacks I am talking about the traditional file processing approach. And then needless to tell you that possibly the music they used to face, okay, because of this potential drawback, they said nothing doing, something, some measures should be taken, some efforts should take place. There should be, okay, something which will allow us to overcome this problem. And that's the reason they say that these drawbacks possibly has prompted the development of so these potential drawbacks. Are you okay with this? So to overcome those drawbacks, okay, the efforts took place and then they come up with the idea and the system which gives a guarantee that these potential drawbacks can be eliminated, can be eradicated. So that is called as database management system. Hi guys, all good till this point. Yes, sir. So sometimes, okay, they keep asking this from examination perspective also. This is a very common question. What are the drawbacks of the traditional file processing approach and how DBMS overcomes that problem. So how DBMS overcomes that problem is going to be a part of our discussion now, which will be happening. So drawbacks already we have discussed. So coming to the database concept and DBMS. So as I already have said that a database is regarded as a collection of related data and it represents some aspect of the real world. So some aspect of real world का मतलब sometimes okay इसे mini world भी कहा जाता है और अभी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है ये जरूरी नहीं कि आप इसको इस पे गौर कीजिए but my duty is to just okay tell you this also so sometimes we also can call this as a universe of discourse. तो इसका मतलब है भाई तू जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तेरा एप्लीकेशन बना रहा है डेटाबेस डिजाइन कर रहा है वो तेरा मिनी वर्ल्ड है वही तेरा रियल वर्ल्ड है तो तुझे जो भी सोचना है कि क्या क्या जानकारी प्राप्त होनी चाहिए और क्या क्या जानकारी ओके रिकॉर्ड होनी चाहिए तो ये जो जानकारी है शुड बी ऑब्वियसली रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए तू डेटाबेस डिजाइन बना सो इसलिए रिलेटेड डेटा एंड इट रिप्रेजेंट सम एस्पेक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड some aspect of the real world is nothing but mini world or universe of discourse and it indirectly means the organization for which the database design is happening. So in nutshell it is a collection of the related data that's DBMS फिर एकदम आसान हो गया भाई DBMS database management system है so any system which takes a responsibility of managing the database is called as database management system. From user's perspective user क्या कर पाएगा by using this system user will be able to organize the data record the data store the data and also retrieve the data as and when it is needed so user to organize store and retrieve the data so these are the managerial aspects management aspect organization of the data storage of the data retrieval of the data is management related aspect so it is called as a management system और एक definition है it is a general purpose software system that facilitates the process of defining, constructing, manipulating and sharing. Defining का मतलब जो है
You can relate this with a kind of the way the data should be recorded, format, the manner in which we want data to be recorded. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आपसे कहा कि मुझे अ, एक स्टूडेंट रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड करना है और मैंने कहा कि एक टेबल में करना है, तो आप मुझसे कुछ पूछोगे, मुझसे जानकारी प्राप्त करोगे और वो हिसाब से आपको एक यू कैन विजुअलाइज कि हाउ द स्टूडेंट टेबल शुड लुक लाइक। तो इन इन अ वेरी मैन्युअल फॉर्म मैं कहूँ कि स्टूडेंट टेबल, आप सोचोगे कि यार स्टूडेंट का रोल नंबर भी आना चाहिए, उसका नाम भी आना चाहिए, उसके बाकी सारे डिटेल्स भी आने चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप कहोगे कि ये सर ये ऐसा टेबल मेरा रहेगा जिसके अंदर हम लोग स्टूडेंट की जानकारी डाल सकते हैं। आर यू ओके विद दिस? गाइस, डिफाइनिंग का मतलब आप इसका नाता फॉर्मेटिंग, द वे द डेटा शुड बी रिकॉर्डेड, इसके साथ जोड़ो। लेकिन सिर्फ टेबल बना है, इसके अंदर डेटा डालना हमने शुरू नहीं किया है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन जो कहा गया यहाँ, कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि भाई भाई तो अभी टेबल तो तूने बना दिया, अभी तू उसके अंदर डेटा डालना शुरू कर। सो यू स्टार्ट पॉपुलेटिंग द डेटाबेस। So construction we mean an attempt to populate, insert, populate the data, populate the records। तो ये कंस्ट्रक्टिंग का मतलब है। फिर एक बार डेटा आपने डाल दिया, टेबल के अंदर डेटा डाल दिया, डेटाबेस में सारे रिकॉर्ड्स आ गए, तो ऑब्वियसली मैनिपुलेशन भी होना चाहिए। So there, the system should allow you to do the kind of a manipulation. And mota mota manipulation can be regarded as kind of ability to insert. But जो insert का मतलब है construction, so I will not okay press on this. But then I'll say, as and when the need arises, you should be able to update, modify. कुछ values change करनी है मुझे, तो modification. As and when the need arises, you feel that okay, the record has lost its significance. No longer it is required in the database. Must not be allowed there, present in the database, should be removed. So deletion की बात है। So manipulation ये तौर में तो फॉर्म में मोटा मोटा और बहुत कुछ है उसके एस्पेक्ट्स। लेकिन the user should be able to insert, should be able to modify, you should be able to delete, you should be able to fetch the data as and when needed। और तीसरा जो है शेयरिंग है। तो शेयरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैम, डियर फ्रेंड्स। और वो बोलता है कि भाई ये जो डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है एंड जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको मैनिपुलेट भी यूजर कर सके, लेकिन ये यूजर के अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस में शेयर होना चाहिए। सो मल्टीपल एप्लीकेशंस बिलोंगिंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन and different categories of users belonging to the same organization should be able to share the data. So that is the reason one of the very important characteristic of a database is it offers DB, and database management system offers integrated and shared environment। इंटीग्रेटेड का मतलब है यूजर के लिए डेटाबेस एक सिंगल रिपोजिटरी है, कलेक्शन है। तो रजिस्टर ऑफिस का यूजर भी रहे या लाइब्रेरी वाला बंदा रहे, उसका अलग एप्लीकेशन है, या अकाउंट्स वाला जो बंदा है उसके अलग एप्लीकेशन है। जब वो डेटा एंटर किया जा रहा है तो एक सिंगल
लॉजिकल रिपोजिटरी में कॉल्ड एज एन डेटाबेस, उसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इंटीग्रेटेड है। ओके, सिंगल यूनिट है। और शेयर्ड इसलिए है क्योंकि अलग अलग यूजर्स अलग अलग एप्लीकेशन उसको शेयर कर पाए, सो दैट इज द रीजन one of the very important characteristic of DBMS is regarded as it offers us an integrated and shared database management system. And database actually is a integrated and shared environment. So ये कुछ definitions हुए, और आपके लिए मैं थोड़ा सा पॉज लेता हूँ। अभी तक टिल दिस पॉइंट जो भी अपना डिस्कशन डिस्कशन तो मैं कहूंगा नहीं, आप ये सुनी कर रहे हो, आप एक्टिव पार्टिसिपेशन आई विल सीक, माय डियर फ्रेंड्स, आई विल एंजॉय। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा, आप भी एंजॉय करोगे, मुझे भी मजा आएगा, और कुछ पन्ने खुलेंगे, और कुछ राज खुलेंगे, और बेटरमेंट ही होगा सबका। तो प्लीज मुझे बताइए अभी तक जो चला मेरे साइड से, इसमें कोई दिक्कत या आपको कुछ सवाल पूछने हैं? जस्ट टेकिंग अ पॉज, प्लीज लेट मी नो। हेलो, हाय, एम आई देयर? यस सर। तो अभी तक क्या दिक्कत है, क्या कुछ है तो? नहीं सर, ऑल क्लियर। ऑल ऑल गुड ना, पक्का? यस सर। चलो ठीक है। तो ये अभी डियर फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे मैं टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करूंगा। ये अभी से यार मैंने कुछ बताया और आप मुझे और 10 चीजें बता पाओगे, क्योंकि सो इजी इज एन ओपन एक्सेस। तो जहाँ लॉजिकल है, जहाँ इंटरेस्टिंग है, जहाँ मेरा रोल है, तो वहां मैं ज्यादा स्ट्रेस करूंगा। और पहला जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो सारे ये जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको टच करके जाएगा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मैं उसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। लेकिन अभी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सिर्फ ट्रिब्यूट होना चाहिए भाई, जो लोगों ने कुछ एफर्ट्स दिए, जो प्रोमिनेंट लीडर्स रहे, अ, उनको एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना हमारी सबकी जिम्मेदारी होती है। हमारी संस्कृति भी हमें वही सिखाती है। सो ग्रेटिट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। तो इसलिए दिस इज जस्ट लेफ्ट टू यू, एंड आई विल बी शेयरिंग दिस एंटायर प्रेजेंटेशन विथ यू, इसका पीडीएफ बना के। और ये आपका मॉड्यूल नंबर 1 का काम तमाम हो गया, मीन्स ओके, ये देख लिया आपने तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी काम चल जाएगा, तो अलग नोट्स की भी जरूरत नहीं है। So, taking this discussion ahead, now coming to understanding what exactly this integrated and shared environment looks like. So now what I'm telling you is that कि ये जो सिलेंड्रिकल जो एक डायग्राम या सिलेंडर बना है, ये डेटाबेस है अपना। और डेटाबेस में क्या होता है, डेटाबेस इज अ काइंड ऑफ अ रिपोजिटरी, और उसमें रिलेटेड डेटा जमा किया जाता है। नंबर 1 हमने तो ऑलरेडी डिस्कस किया। और डेटा बेस का और एक खासियत, डेटाबेस की और एक खासियत यह है कि डेटाबेस में ना सिर्फ डेटा, उसके अंदर डेटा डिक्शनरी भी होती है। सो अभी ये जो डेटा डिक्शनरी जो है ना, इसे कभी कभार कुछ अलग टेक्स्ट बुक में या रेफरेंस बुक में
डेटा कैटलॉग भी कहा जाता है, और कैटलॉग का मतलब है आपको वहाँ डेटा अबाउट डेटा मिलेगा, कुछ और जानकारी मिलेगी। सो डेटा डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, तो मेटा, सो राइट इट हियर कि डेटा डिक्शनरी holds metadata, and metadata is nothing but data about data. तो डेटा अबाउट डेटा का मतलब यह है कि भाई तूने एम्प्लॉय एक टेबल बनाया डेटाबेस के अंदर, तो ऐसा सोचो कि रिलेशनल डेटाबेस की बात हो रही है, आरडीबीएमएस, और फाइनली आप मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स इस पे ही करोगे। ऑब्वियसली आपको कुछ फ्लेवर मिलेगा कॉलेज में, जो नॉर्मली रिकमेंडेड है। अपना कोर्स तो रिलेशनल डेटाबेस के इर्द गिर्द चलेगा, लेकिन कॉलेज में जब आप ये कर रहे हो लैब सेशंस, तो आपको थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का भी फील मिलना चाहिए। तो मोंगो डीबी है, तो फायर बेस है, इसका भी फील लीजिए। और माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, पोस्टग्री एसक्यूएल है, ओरेकल है, ये सब कुछ है। तो रिलेशनल डेटाबेस, तो उसमें सारा जो डेटा आता है वो टेबल के फॉर्म में विजुलाइज करता है। तो ऐसा सोचो कि एम्प्लॉय टेबल की बात हो रही है, और अपने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, उसकी सैलरी, फलाना धमाका सब कुछ होके आपने इसके अंदर सोच लिया, आपने वैसा टेबल बना बना दिया। तो ये तो, और इसके अंदर जो जाएगा वो डेटा है, एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा। जैसा एम्प्लॉय नंबर 111 है, उसका नाम रमेश है, उसकी सैलरी, ये सब कुछ, ये एक्चुअल डेटा होगा। डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप क्या है, एम्प्लॉय आईडी क्या न्यूमरिक है या अल्फा न्यूमरिक है, स्ट्रिंग है या इंटीजर है। नेम तो ऑब्वियसली छोड़ दो, तो स्ट्रिंग टाइप ही रहेगा। सैलरी जो है वो फ्लोट टाइप की रहेगी या इंटीजर टाइप की रहेगी। डेट जो है उसका फॉर्मेट क्या है, डी डी एम एम वाई 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 है या सिर्फ एम एम डी डी वाई 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 है। आर यू गेटिंग दिस? सो ये जानकारी डेटा डिक्शनरी में रिकॉर्ड की जाती है, और इसलिए मेटा डेटा कहा जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है, जो रोल प्लेयर्स है, उनको कितना एक्सेस मिलना चाहिए, क्या जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंटल हेड जो है, उसको what piece of information he should be allowed to gain and access, whether every person working in a department like faculty है या non teaching है, whether should be allowed to gain an access to the entire data as equivalent to the head of the department or no। तो उसके एक्सेस राइट क्या होने चाहिए, उसको डिलीट करना अलाउड है क्या नहीं है, उसका पासवर्ड क्या है, ये सारी जो जानकारी है ना, वो मेटा डेटा में, मीन्स डेटा कैटलॉग में या डेटा डिक्शनरी। तो एक एक खासियत है, ये एक वेरी फीचर ऑफ डेटाबेस है कि नॉट ओनली डेटा बट इट आल्सो होल्ड्स मेटा डेटा। कोई हमसे पूछे कि मेटा डेटा क्या है, तो हम लोग कहेंगे वो तो डेटा अबाउट डेटा है। फिर हमसे कोई पूछे कि ये मेटा डेटा कहाँ होता है, तो हम लोग कहेंगे कि अलग एक यूनिट है जिसे डेटा डिक्शनरी कहा जाता है या डेटा कैटलॉग कहा जाता है, उसमें ये जानकारी आपको मिलेगी, रिकॉर्ड की जाती है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑब्वियसली ओके द डेटा डिक्शनरी एंड मेटाडेटा। नाउ कमिंग बैक, तो डेटाबेस तो ऑब्वियसली अपना रिपोजिटरी है। और अभी तक एनवायरनमेंट कैसा था माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक अगर मैं बात करूं, सो यू विल फाइंड दैट, अभी तक की अगर मैं बात करता हूँ, होल्ड ऑन। हाँ, अभी तक जो बात चली हमारी कि ये एप्लीकेशन है जो डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, यहाँ यूजर्स जो है वो एप्लीकेशन यूज करेंगे, उनके सामने फॉर्म्स आएंगे,
वो फॉर्म में कुछ एंट्री की जाएगी, सर्च करना है तो ऑप्शन रहेगा सर्च करने का। और ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन एक्चुअली विल डील विथ डेटा रिपोजिटरी। और ये डेटा स्टोरेज इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच में डेटा इज रिकॉर्डेड इन फाइल्स, तो डेटा स्टोरेज इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। तो ये जो डेटा पड़ा है, ये एप्लीकेशन वो फाइल्स को, अप्रोप्रिएट फाइल को ओपन करेगा, फिर फेच करेगा डेटा, फिर ये यूजर को प्रोवाइड करेगा, और ये चलता रहेगा। What I'm trying to tell you is that applications are allowed to directly play with fetch the data। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये एप्लीकेशन की एक लेयर है, और यहाँ डेटाबेस है, और यहाँ यूजर्स है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम में ऐसा सिनारियो था। अब जब हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि और एक लेयर आ गई। So there is one more layer which has been inserted, which is called as a DBMS। तो अभी वही सिनारियो मैं अगर कोशिश करता हूँ आपके सामने रखने की, तो ये एप्लीकेशन है, अलग अलग एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन शायद एग्जाम सेल का रहेगा, ये एप्लीकेशन शायद लाइब्रेरी का रहेगा, ये एप्लीकेशन शायद टिपिकली स्पीकिंग अकाउंट्स का रहेगा। अलग अलग एप्लीकेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन। और ये एप्लीकेशंस को यूज करने वाले अपने एंड यूजर्स है, अलग अलग यूजर्स है। लाइब्रेरी वाले, लाइब्रेरियन और उसका स्टाफ है, वो मस्त खुश है ये सारा एप्लीकेशन यूज करके, उसका काम एकदम आसान हो रहा है, चंगे ऑटोमेशन चल रहा है। ये एग्जाम सेल वाले यूजर्स है, और स्टूडेंट एग्जाम जब होती है तो उनका जो मार्क्स है, रिजल्ट एनालिसिस है, ये सारे उनका ये कंसर्न्स होता है। फिर ये अकाउंट्स वाले बंदे, यूज स्टूडेंट की फीस जमा हो रही है, सैलरी की निकल रही है, फैकल्टी की एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। नाउ आपको जो समझना है ना माय डियर फ्रेंड, एप्लीकेशन आर नॉट अलाउड टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द डेटा रिपोजिटरी। और एक लेयर आ गई, और वो लेयर है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस विल से एप्लीकेशन यू प्लीज सेंड योर रिक्वेस्ट टू मी, and on behalf of that request it is my responsibility to, okay, fetch the data from the database. Are you getting this? So this is one more layer of abstraction. This is DBMS is layer of abstraction. Layer of abstraction is okay, something like तू आम खा और गुठलियां की गिनती मत कर। तो तुझे क्या करना है, उधर डेटाबेस में डेटा कैसा पड़ा है, कैसा ऑर्गेनाइज किया है, ओके, तू उसकी चिंता मत कर। ओके, यू जस्ट सेंड मी अ रिक्वेस्ट एंड आई नो हाउ एग्जैक्टली द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, मेटा डेटा इज देयर, आई विल डू द फेवर टू यू, and I will provide you whatever you are requesting, whatever kind of operation you are requesting. DBMS says, which is a software system, says that I will look after that. So this is a change in an environment. This actually, okay, is a root cause of overcoming all the potential drawbacks what the earlier system, okay, uh, used to possibly allow user to experience. So that is the reason, okay, this environment will look like this. So register office will use its own academic application, accounts department account application, as a sare. These applications in turn will interact with the database management system. Database management system in ahead of this in turn will interact with the database and will provide whatever data which has been requested. Are you getting this? And not only that, my dear friends, database management system also opens up one more option where some more learned, sophisticated users, those who are having the skills, those who have done database management related stuff and certification and course and part of curriculum. So they are called as a sophisticated users, and they can directly interact with the DBMS by using database
language support. So, for example, they can make use of SQL, structured query language, SQL, you can call it as. So they will use this language and they can then, they don't require any other application, okay, software application standing in between them and DBMS. They can directly interact with the DBMS also. So that is one more beauty of, okay, database management. So in nutshell, this is how, typically speaking, diagrammatically, the architecture of Mota Mota, the ecosystem, I can call it as the DBMS approach, and DBMS approach will look like. Got the point? Yes, sir. Okay. So, my dear friends, I hope all good and everything is happening as per your expectation. Uh, you are able to establish a sync. That is what I can say. In the physical environment, and we sitting in front of each other and in the classroom, it becomes easy for me. My experience permits me, but then in this virtual environment, what you can do is that you can keep acknowledging frequently in between sometimes. So that possibly will be okay, and point of encouragement for me, will help me to boost my energy. So please keep doing that. So going Yes, ahead, sir. taking this discussion ahead. As I said, DBMS is one more layer of abstraction. सो द अल्टीमेट गोल ऑफ, और ये गोल ना सिर्फ डीबीएमएस का नहीं भाई मेरे, ये किसी भी सिस्टम का गोल होता है. कोई भी सिस्टम के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग को कहेंगे कि सिस्टम भाई कन्वीनियंट भी होनी चाहिए यूजर पर्सपेक्टिव से. तो आजकल तो यार ये यूआई यूएक्स इज वेरी हैपनिंग फील्ड, यूजर एक्सपीरियंस की बात चल रही है. तो डिग्री ऑफ कन्वीनियंस जो है यूजर के लिए, वो जितना अच्छा, उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा यूजर का. और उतने चांसेस बनेंगे कि भाई मोर एंड मोर यूजर्स विल बी टर्निंग टू योर सिस्टम एंड बिकमिंग सब्सक्राइबिंग फॉर योर सिस्टम. सो कन्वीनियंस तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी सिस्टम के लिए. और इतना कन्वीनियंट कर दिया हमने सिस्टम कि हमने इफिशियंसी को अनदेखा किया, ये भी नहीं चलेगा. तो दिस यू नीड टू ऑब्वियसली ओके टेक बोथ दिस component hand in hand. You are not only providing the degree of convenience to the user, but you are also offering a highest degree of efficiency to the user. So this also is obviously primary goal of DBMS, to provide an environment that is both convenient as well as efficient to use in retrieving and storing the database information. So this doesn't require, I believe, any further justification and explanation. तो ये तो common expectations है यार किसी भी system के तरफ से. Now coming to an abstract view of the database to the user. Abstract view का मतलब है, abstraction का मतलब क्या होता है? तो abstraction is nothing but a mechanism of projecting, highlighting the details of importance and hiding unwanted details. तो क्या लेवल की डिटेलिंग होनी चाहिए, वो तो तय होता है कि भाई पर्सपेक्टिव क्या है. और ये बड़ा कॉमन एग्जांपल आपने देखा भी होगा, जैसा आपने फर्स्ट ईयर में
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किया होगा, शायद जावा की बात होती है, एब्स्ट्रैक्शन है। तो हर यूजर कैटेगरी का एब्स्ट्रैक्शन अलग अलग है। और अगर बंदा ड्राइविंग सीख रहा है तो उसको इंटरनल डिटेल्स जो टिपिकली मैकेनिकल इंजीनियर या ऑटोमोबाइल इंजीनियर का जो पर्सपेक्टिव होता है, वो उसको तो वो गाड़ी देखेगा तो वो सोचेगा अंदर का पूरा मैकेनिज्म की भाई है, ये पिस्टन कैसा चल रहा है, गियर बॉक्स कैसा चलता है, ओके, एंड सो एंड सो फोर्थ, फ्यूल इंजेक्शन कैसा होता है। तो ये उसका पर्सपेक्टिव। और जो बंदा सीख रहा है उसको क्या करना है यार, अंदर मशीन कैसा चल रहा है, मैकेनिज्म कैसा चल रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो उसका फोकस है कि भाई मैं स्टीयरिंग कैसा, मेरा जजमेंट कैसा जाएगा, मैं स्टीयरिंग कैसा कंट्रोल करूं, व्हेन आई नीड टू प्रेस, व्हेन आई नीड टू एक्सेलरेट, व्हेन आई शुड प्रेस द क्लच एंड ब्ला ब्ला, एंड व्हेन टू चेंज द गियर। ये उसका पर्सपेक्टिव। तो वो जो ड्राइविंग सीख रहा है तो उसको फोकस करना है, उसको डिटेल्स, जो जो ट्यूटर है उसका, जो ट्रेनिंग दे रहा है, वो बंदा उसको ये जानकारी को का एक्सपोजर दे, उसको बताए कि ये ऐसा इस तरह से तू स्टीयरिंग कंट्रोल कर। और ना कि बताए कि यार देख तू ये एक्सीलरेटर प्रेस करेगा तो अंदर ये ऐसा होगा, ये तू गियर चेंज करेगा तो गियर बॉक्स का इंटरनली ओके एडजस्टमेंट है। तो डजंट मेक एनी सेंस। तो अनवांटेड डिटेल्स को का एक्सपोजर मिलना नहीं चाहिए। और जो वांटेड डिटेल्स है, जो डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट है, उसका उसको जरूर एक्सपोजर मिलना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म ऑफ हाइडिंग अनवांटेड डिटेल्स एंड प्रोजेक्टिंग ओनली दोज डिटेल्स विच आर ऑफ आवर इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्शन। समझा? यस सर। एब्स्ट्रैक्शन का अपना नॉर्मल यूजर का पर्सपेक्टिव कि मैंने लेट अस दैट मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, वर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, मुझे उसको सेव करना है तो मैंने वो सेव वाला ऑप्शन किया, मैंने ड्राइव डिसाइड किया, उसके अंदर का फोल्डर डिसाइड किया, वहां सेव कर दिया। तो मेरे लिए वो फाइल है भाई, मेरे लिए तो एक फाइल है जिसके अंदर मेरा डॉक्यूमेंट पड़ा है। एक यूजर का पर्सपेक्टिव। दूसरे यूजर का पर्सपेक्टिव जो हार्डकोर इंजीनियर है, या जो जिसे सम इंटरनल डिटेल्स, या डिजाइनर जो है, या एडमिनिस्ट्रेटर जो है, तो बोलेगा ये फाइल नहीं है बॉस, वो फाइल एक्चुअली रिकॉर्ड हुई है हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क के अंदर वो जो रिकॉर्ड हुई है ये सेक्टर में, और उसका ये टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, या ये डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर यूज किया गया। सो बी ट्रीज यूज किया या बी प्लस ट्रीज यूज किया गया। तो ये आपने पढ़ा है, ओके, समवेयर इन योर डेटा स्ट्रक्चर, और इंडेक्सिंग यूज हुआ है। ये एक अलग पर्सपेक्टिव हुआ। तो डीबीएमएस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई मैं एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करूं, जो बंदे को जैसा दिखना चाहिए वैसा ही दिखना चाहिए। एंड द बंदा शुड नॉट बी, या द यूजर शुड नॉट बी एक्सपोज टू अनवांटेड डिटेल्स, अदरवाइज द लाइफ विल गो मिजरेबल। तो मुझे अगर एक्सपोजर मिला हो सारे माइन्यूट सबटेल डिटेल्स, तो जैसा यार हमारे लिए अगर हमें बार बार एक्सपोजर मिलता है कि अपना बॉडी इंटरनली, जो बॉडी के ऑर्गन से वो कैसे काम करते हैं, तो हमारी लाइफ मिजरेबल बनेगी। हम लोग हंसते खेलते हैं, चल रहा है चंगे ओके, दौड़ रहे, कर रहे अपना अपना काम ईमानदारी से, तो अपना पर्सपेक्टिव है। तो फिजिशियन वो बोलेगा भाई ऐसा इंटरनल ऑर्गन ऐसा नहीं, छोड़ दो। तो जैसा यूजर का पर्सपेक्टिव ऐसा दिखना चाहिए, इज एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू। वो भी एक प्राइमरी गोल होता है डीबीएमएस का। एंड टू मेक दिस पॉसिबल, the architecture of DBMS, okay, which we normally popularly called as a three-level architecture, ANSI Spark. ANSI stands for American National Standard Institute. Everyone knows this. Okay, so ANSI Spark आर्किटेक्चर कहा जाता है, थ्री लेवल आर्किटेक्चर कहा जाता है डेटाबेस का। इस पे भी सवाल पूछा जाता है, एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है from examination perspective also. Draw and explain ANSI Spark three-level architecture. ऐसा कहा जाता है, तो you need to draw this diagram and put your explanation. Now,
which are these three levels. So फिजिकल लेवल है, कभी कभार इसे इंटरनल लेवल भी कहा जाता है. तो कंसेप्चुअल लेवल है, कभी कभार उसे लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है. तो साइड बाय साइड व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल आल्सो पुट द alternative terminology sometimes which is used. So this is called as internal level. This is called as logical level. And this is called as an external level. तो मैंने दिखाई है यहाँ external. तो ये ऊपर एंड यूजर है, मीन्स सही माने ये जो डायग्राम है ना वो ऐसा है कि यूजर्स है, वो अपना अपना एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं. ओके, वो एप्लीकेशन के लिए उसको उसके हिसाब से एक चंक ऑफ डेटा दिखाई देगा. सो ये उन यूजर्स का पर्सपेक्टिव है. तो आई विल कॉल दिस एज उनका व्यू है, उनको इतना ही दिखता है, व्यू वन है उनके रोल के हिसाब से. ऑब्वियसली ये अलग यूजर है, अलग यूजर का मतलब ये लाइब्रेरी वाले हैं, ये एग्जाम वाले हैं, उनका भी वो भी एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं. ये सारे अलग यूजर्स है, उनका भी एक व्यू है. तो ये व्यू बेसिकली होती है यूजर्स व्यू. अभी ये सारे अलग अलग यूजर्स व्यू है, और ये ऐसा ऐसा है, ये और एप्लीकेशन है, ये यूजर्स है वो एप्लीकेशन के, और उनका भी एक व्यू है, व्यू एन है फॉर एग्जांपल. एंड दिस इज अ conceptual level. ऐसा वो एक्चुअल डायग्राम. तो सर आई विल थिंक यस यस, सर मल्टीपल यूजर्स की एक ही व्यू हो सकता है? हो सकता है ना. मींस वो सारा खेल ना, वो who should get uh, who should get exposure to what kind of data actually is a policy of organization decides. Now for example, जो एग्जाम कंट्रोलर है आपके कॉलेज का, जो बंदा है जो एग्जाम का पूरा देखता है, तो बंदे को ना आपका जो एग्जामिनेशन हो गया, आपके टर्म वर्क के मार्क्स, ओरल के मार्क्स, फिर बाद में आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम, मिड सेमेस्टर एग्जाम के मार्क्स पंच हो गए, एंट्री हो गई, तो उसको पूरा एक्सेस है, वो देख सकता है. लेकिन शायद वो जो दूसरा उस एग्जाम सेल में काम करने वाला जो क्लर्क है, उसको ये पूरा एक्सपोजर ना मिल पाए. आर गेटिंग दिस? यस सर, गेटिंग. प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल कुछ एग्जाम कंट्रोल एग्जाम सेल को बिलोंग नहीं करता है, लेकिन प्रिंसिपल बीइंग एन हाईएस्ट ऑथोरिटी, तो प्रिंसिपल इज आल्सो अलाउड टू गेट अ व्यू ऑफ द एंटायर रिजल्ट, बट प्रिंसिपल इज नॉट अलाउड टू मैनिपुलेट द रिजल्ट. Principal is not allowed to delete or change, but principal can, okay, maybe for some kind of an analysis, principal eager to know result happens to be one of the major concerns of everyone as an institute. तो उसको देखना है भी ये सब्जेक्ट के अंदर कौन सा रिजल्ट कैसा लग रहा है. तो प्रिंसिपल इज अलाउड टू ऑब्वियसली ओके गेट अ व्यू, बट विल नॉट बी अलाउड टू चेंज. एग्जाम कंट्रोलर आफ्टर डूइंग द रीवेरिफिकेशन या रीचेकिंग, फिर मॉडरेटर ने मार्क्स बढ़ा दिया, तो इज अलाउड टू डू सम काइंड ऑफ एन चेंजेस. आर यू गेटिंग दिस? So your यस question सर. was कि multiple users are allowed to get a view of the same piece of information, but then this entire thing, who should get what kind of a view, is absolutely policy driven. You organization का policy driven रहता है.
I hope I am answering to your question. Yes, sir, I got it. Yes, thank you. Thank So you, sir. coming back, तो ये सब इंटरनल लेवल, ये जो बात हो रही है एंड यूजर है, अभी सब कुछ जो है वो तो डेटाबेस में पड़ा है, तो इसे लॉजिकल लेवल कहा जाता है. सो लॉजिकल लेवल का जो फोकस है ना माय डियर फ्रेंड्स, इट इज बेसिकली ओके, फोकस व्हाट पे. तो लॉजिकल लेवल होल्ड्स अ कंसेप्चुअल स्कीमा. स्कीमा इज नथिंग बट डिस्क्रिप्शन. तो लॉजिकल लेवल पे फोकस व्हाट पे रहेगा, तो लॉजिकल लेवल विल लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट डेटा इज देयर इन द डेटाबेस and what kind of relationship okay exists among the data. Focus what पे है, फिजिकल पे. फॉर एग्जांपल कंसेप्चुअल लेवल पे अगर मैं डीबीएमएस के बारे में, डेटाबेस के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं कहूंगा कि यार मेरे डेटाबेस में ना ये 4 टेबल्स है. आई होप यू विल बी एबल टू इमीडिएटली अंडरस्टैंड. मेरे बैकएंड पे या डेटाबेस में एम्प्लॉय टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, कोर्सेज टेबल है, और रजिस्ट्रेशन टेबल है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? व्हाट है, व्हाट पे फोकस है. फिजिकल लेवल जो है, इंटरनल लेवल, उसका फोकस हाउ पे होता है. कि अगर टेबल है तो एक्चुअली ये टेबल कैसा रिकॉर्ड किया गया स्टोरेज में, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आर यूज. जैसा मैं बता रहा था कि ये टेबल रिकॉर्ड करने के लिए डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर क्या यूज किया गया, व्हाट टाइप ऑफ data structures are used, what kind of file organizations are used, इंडेक्सिंग किया गया है क्या, हैशिंग किया गया है क्या फास्ट एक्सेस के लिए. तो ये जो हाउ वाला फैक्टर है ना, वो आम जनता के लिए, नॉर्मल एंड यूजर के लिए कोई मायना नहीं रखता, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं. वो बंदा भाड़ में जाए यार, तू क्या मुझे बता रहा है इंडेक्सिंग, हैशिंग, फिशिंग. मुझे बस, भाई मेरे, मुझे जो डेटा चाहिए वो दिखना चाहिए. ये एंड यूजर का पर्सपेक्टिव है. वही अगर तेरे मेरे जैसे जो टेक्नोक्रैट है, तो ऑब्वियसली हम लोग कहेंगे यार थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बता, कौन सा डेटा स्टोरेज. तो हर बंदे के हिसाब से वो उसका एक्सपेक्टेशन अलग अलग है. तो फोकस यहाँ हाउ रहा, हाउ एग्जैक्टली द डेटा इज स्टोर्ड, व्हाट डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड. सो इसलिए ये एब्स्ट्रैक्शन है. बाहर वाले बंदे को सिर्फ व्यू मिल रहा है, उसको जितना चाहिए उतना ही डेटा एक्सपोजर मिल रहा है. दूसरे लेवल पे आते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं, तो व्हाट के बारे में, टेबल्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको डेटा. और थोड़ा अंदर आते हैं तो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगी जरूर, और लेकिन मोर माइन्यूट डिटेल्स, मोर सब्टेल डिटेल्स आपको मिलेंगे. और वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली हाउ द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द डेटा. और ये जो लेवल से उनके बीच में मैपिंग होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए. So mapping in between conceptual level and physical level is called as a conceptual internal mapping, and mapping in between external level and conceptual level is called as an external conceptual mapping. And I will let you know this diagram you need to draw if at all there is a question, and you need to, obviously you have all these details available. So स्कीमा का मतलब है डिस्क्रिप्शन, जैसा मैंने कहा ओवरऑल डिजाइन के बारे में बात होती है, डिस्क्रिप्शन. फिजिकल लेवल, इंटरनल लेवल, लोवेस्ट लेवल है, तीन थ्री लेवल आर्किटेक्चर. और आपको क्या मिलेगा, आपको फोकस मिलेगा हाउ पे, हाउ डेटा इज एक्चुअली रिकॉर्डेड इन द डेटाबेस, एंड इट डिस्क्राइब्स कॉम्प्लेक्स लो लेवल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एक्सेस मेथड्स यूज्ड टू. ये डिस्क्रिप्शन में क्या क्या आएगा भाई मेरे, तो डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर्स कौन से यूज किए गए, एक्सेस मेथड्स कौन से यूज किए गए, ये सारे डिटेल्स तुझे इंटरनल लेवल पे मिलेंगे. वहां आपको इंटरनल स्कीमा या फिजिकल स्कीमा मिलेगी. एक लेवल ऊपर जाते हैं, कंसेप्चुअल है, लॉजिकल है. यार लॉजिकल बात कर, ब्लॉक्स के बारे में बात कर, तो टेबल्स के फॉर्म में आपको मिलेगा. एंड फोकस हाउ से हटकर व्हाट पे आ गया. एंड हमें पता है हाउ रिलेटिवली इज डिफिकल्ट एज कंपेयर टू व्हाट.
what is this, what is that is easy to answer. How this is happening is relatively difficult to understand. So degree of complexity slightly is eased, थोड़ा कम कर दिया डिग्री ऑफ डिफिकल्टी को, फोकस व्हाट पे आ गया. तो जानकारी क्या है, क्या डेटा पड़ा है डेटाबेस में, व्हाट डेटा इज रिकॉर्डेड, एंड क्या रिलेशनशिप है उनके बीच में. रिलेशनशिप का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक स्टूडेंट अगर एनरोल करता है एक कोर्स को, और कोर्स के साथ एक रिश्ता जुड़ा है फैकल्टी का, तो स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में एनरोल किया और ये कोर्स कौन पढ़ा रहा है, तो ये एक रिश्ता बन रहा है, रिलेशनशिप बन रही है. स्टूडेंट इज रिलेटेड टू कोर्स एंड कोर्स इज टेकन केयर बाय फैकल्टी. तो हाउ व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट अमॉन्ग द डेटा, also you will find those details here at the logical level. So programmers and database administrator use at this level, and generally administrator only works at this. This is only admin, okay, database administrator, DBA. He is supposed to look after the internal storage, DBA and designers. Obviously database designers. अब ये और एक ऊपर लेवल गए, तो जैसा मैंने कहा था कि ये यूजर्स पर्सपेक्टिव है, पर्टिकुलर यूजर ग्रुप को किसमें इंटरेस्ट है, सिर्फ दे विल गेट अ व्यू ऑफ that much of the data. So that is the reason it is called as, sometimes it is called as an sub-schema, या user's perspective, end user's perspective. So I can write down that as this is end users. तो आपको ये सब कुछ लिखना है, अगर कुछ मिनट इसमें आपको कुछ पूछना है तो अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे बिफोर ऐसा समझा, स्टूडेंट एम्प्लॉय, देन रिजल्ट. ऐसे अलग अलग टेबल्स है, स्टूडेंट टेबल है, एम्प्लॉय टेबल, रिजल्ट टेबल है. तो अभी यूजर पर्सपेक्टिव जैसा मैंने बताया कि ये एग्जाम डिपार्टमेंट यूजर्स, they will get a view of result. Academic department जो है, they will get a view of faculty as well as employee. Every employee will not get an access to all the details of an employee. So unnecessarily every employee is curious. ऐसा सोचो कि he gains an access to what kind of benefits the employee is getting from the organization. And they getting into a kind of a comparison, फिर वो comparison आ जाता है, and बहुत ज्यादा comparison everyone knows that leads to a misery, लाइफ मिजरेबल बन जाता है बहुत ज्यादा कंपैरिजन पे. तो मैंने मुझे मेरी जानकारी तो दिखाई दे रही है, मेरा सैलरी कितना, ये कितना है उतना, और ना मुझे दूसरे एम्प्लॉय की भी सैलरी दिखाई दे रही है. अगर वैसा होगा तो फिर जलन होगी अगर उसको ज्यादा सैलरी है, और ये ह्यूमन नेचर है. तो रिले एक बार वो आ गया कंपैरिजन तो लफड़ा होता है. तो ये होना नहीं चाहिए, इसलिए कुछ डिटेल्स एक्सपोज नहीं किए जा रहे, ऐसे यूजर पर्सपेक्टिव है. अभी ये जो सारे टेबल्स जो है, ये सारे टेबल्स की जानकारी आपको लॉजिकल लेवल पे दिखाई देगी. लॉजिकल लेवल पे सारा कुछ जो एक्सप्रेस हो रहा है वो टेबल्स के फॉर्म में हो रहा है. आर यू गेटिंग दिस? और इसके नीचे अगर फिजिकल लेवल पे जाता है, जो इंटरनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ये स्टूडेंट टेबल आउट,
it is recorded. So how it is recorded का मतलब है which data storage structure is used. Indexing, hashing mechanism used. तो ऐसे सारे details. I hope this example allows you to some extent, understand the concept in more better manner. So taking this ahead, जैसा मैंने कहा था भाई मैपिंग भी है, ये डायग्राम में आपको मैपिंग भी दिखाई देगी. मैपिंग म्हणजे रिश्ते रिश्ते जोड़ने का कार्यक्रम है. ये इधर ऐसा है तो उधर कैसा रहेगा, तो इट इज अ मैपिंग. Establishing a kind of connect in between the two things is nothing but a mapping. तो ये दो लेवल्स के बीच में कंसेप्चुअल लेवल है, ये फिजिकल लेवल है, ये यहाँ इंटरनल स्कीमा, इंटरनल डिस्क्रिप्शन है, यहाँ लॉजिकल डिस्क्रिप्शन है. तो ये दो के बीच में जो मैपिंग है वो ऑब्वियसली कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग है. तो मैपिंग का काम क्या होता है, रिश्ता जोड़ने का. सो इट बेसिकली इज अ काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन वी टॉक अबाउट. So mapping is used to transform the request and response between various database levels of architecture. तो इसका मतलब ये यूजर है, यूजर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये डेटा चाहिए. ये यूजर जो रिक्वेस्ट करेगा उसके व्यू के हिसाब से रिक्वेस्ट करेगा, उसको जो अलाउड है देखना उतना ही तो रिक्वेस्ट आ गई. और व्यू इज अ सब स्कीमा, मीन्स एक टेबल का छोटा हिस्सा होगा. जैसा मैंने कहा कि सबको पूरा टेबल दिखना जरूरी नहीं है, किसी को सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, उसका पोजीशन दिखाई दे रहा है, सैलरी डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा. तो वो हिसाब से वो यूजर ने रिक्वेस्ट की, तो उसका नाता पहले अपने लॉजिकल लेवल में सारे जो टेबल्स पड़े वो टेबल के साथ किसके साथ, कौन से टेबल के साथ उसका रिश्ता बनेगा, ये तय होता है. और फिर वो टेबल एक्चुअली हार्ड डिस्क में कौन सा डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर यूज करके रिकॉर्ड किया गया है, वो जानकारी इंटरनल स्कीमा में होती है. तो ये मैपिंग है. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिक्वेस्ट मूविंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, व्यू एक्सटर्नल लेवल से लॉजिकल, लॉजिकल से इंटरनल, और इंटरनल करने के बाद में एक्चुअली डेटा फेच होगा. और डेटा फेच होने के बाद में ये रिजल्ट जो है, जो भेजना है ऊपर यूजर को, तो डेटा मिलना चाहिए. सो ये रिजल्ट विल कीप गोइंग बैक एंड विल बी handed over back to the user. So transformation of request from one level to another, request and result from one level to another is nothing but a mapping. So that is the meaning. Mapping is used to transform the request and response. Response means result between various database levels of architecture. And using this mapping, DBMS supports concept of data independence. Very important. इस पे भी सवाल पूछा जाता है. What is data independence? So data independence कुछ नहीं है मेरे दोस्तों, is a is a property of DBMS that helps you to change database schema at one level of database system without requiring to change. Next slide. Ability to apply a change at one level without a need to change at another level is data independence. डिपेंडेंसी नहीं रही, इसका मतलब डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए. इसका मतलब ये है कि भाई मैंने मेरा डेटाबेस हार्ड डिस्क पे रखा है अभी,
कल चल के मैंने तय किया कि मैं उसको ओके एसएसडी पे लेके जाता हूँ तो मेरा फास्ट एक्सेस होगा। तो मैंने एसएसडी पे चेंज किया तो फिर तेरी सिस्टम कह रही कि यार ये चेंज आया तो ऊपर के भी लेवल्स चेंज करो। वैसा नहीं होना चाहिए, तो फिर वो तो डिपेंडेंसी आ गई। एक ऑफिस में, एक पुलिस स्टेशन में, अगर वहां काम करने वाला, अब रियल लाइफ छोड़ दो, वेरी आइडियली स्पीकिंग आंसर, काम करने वाला चेंज हो गया, दूसरा सब इंस्पेक्टर आ गया, तो प्रोसेसेस तो वही रहेंगी। तो यूजर को ऐसा फील नहीं हो रहा है ये चेंज हो गया, गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियल आप लोग रिजर्वेशन करने मैन्युअली ऐसा सोचो कि आप टिकट निकाल रहे हैं, सबरबन अपना लोकल ट्रेन का, आप स्टेशन पे जाके टिकट निकालते हो फिजिकल, आपको क्या सर्विस मिलती है वहां की? आप जो फेयर है वो पे करो और आपको टिकट मिलेगी हाथ में। अच्छा, वो सामने वाले बंदे जो है वो चेंज हो रहे हैं, आपको क्या लेना देना? डिपेंडेंसी नहीं ना। बस मुझे मेरी सर्विस मिलनी चाहिए, कौन दे रहा है मुझे टिकट, कौन सा बंदा, डजंट मैटर। वही स्पिरिट है डेटा इंडिपेंडेंस। सो एबिलिटी टू अप्लाई चेंज एट वन लेवल विदाउट अफेक्टिंग द हायर लेवल्स, हायर इज अ डेटा इंडिपेंडेंस। नीचे नीचे के लेवल में चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक टेबल डेटाबेस में मेंटेन करके रखा है जिसका नाम स्टूडेंट टेबल है, और कल चल के मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये स्टूडेंट का और वन मोर कॉलम ऐड करेंगे, सो वो स्टूडेंट का जो और कुछ हिडन टैलेंट्स जो है मुझे कैप्चर करना है। लेट अस अज्यूम दैट आई डिसाइडेड टू आल्सो कैप्चर द पैशन ऑफ द स्टूडेंट। So I'm floating a form and students are responding me and I want that passion of the student individual also should get recorded. पहले ये सोचा नहीं था मैंने, तो एक वो पैशन वाला कॉलम मेरे टेबल में नहीं था और अभी मैंने डाल दिया उसको। तो आई एम चेंजिंग द स्टूडेंट टेबल। सो व्हेन आई एम चेंजिंग द स्टूडेंट टेबल तो एक्सटर्नल लेवल जो है, एक्सटर्नल यूजर पर्सपेक्टिव, वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिनको जो देखना चाहिए उतना दिखाई दे रहा है। लेकिन नीचे जब मेरा स्टूडेंट टेबल चेंज होता है तो वो उसके लिए डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज होगा। इंडेक्सिंग में मुझे थोड़ा सा ट्यूनिंग करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग हैशिंग में। तो नीचे के लेवल में चेंज आना ही है, लेकिन ऊपर चेंज करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये डेटा इंडिपेंडेंस है। तो परत एकदा सांगतो की एबिलिटी टू अप्लाई चेंज एट वन लेवल विदाउट अ नीड टू चेंज द हायर लेवल्स इज अ डेटा इंडिपेंडेंस। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बनती है फिर। तो ये दो पॉसिबिलिटी इसलिए है कि तीन लेवल्स है। एक्सक्यूज मी। हाँ, तीन लेवल से माय डियर फ्रेंड्स। फिजिकल लेवल है तो यहाँ भी चेंज हो सकता है, यू कैन अप्लाई चेंज एट दिस। तो यहाँ चेंज हुआ तो नीचे स्टोरेज स्ट्रक्चर में चेंज होगा जरूर, लेकिन कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, लॉजिकल लेवल पे चेंज कर रहे हो आप, एक टेबल के अंदर एक नया कॉलम डाला जा रहा है, या तो टेबल के अंदर से एक कॉलम को निकाला जा रहा है, या और एक नया ही टेबल डाला जा रहा है। ये सारे चेंजेस आप कंसेप्चुअल लेवल पे कर रहे हो। तो उस टेबल के लिए नीचे चेंजेस होने ही होने हैं। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स है वो खुश है अपने अपने व्यू से, उनको ये चेंज एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। सो you should not be spending a time on altering this views. That is exactly the data independence। दो पॉसिबिलिटीज के बारे में मैंने बात की, एक तो फिजिकल लेवल और एक कंसेप्चुअल लेवल। सो फिजिकल लेवल पे जब चेंज किया जाता है तो उसे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस कहा जाता है।
और कंसेप्चुअल लेवल पे अगर चेंज किया जाता है कुछ तो उसे लॉजिकल कहा जाता है. सो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. सो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है एबिलिटी टू अप्लाई चेंज एट इंटरनल लेवल, और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब है द एबिलिटी टू अप्लाई चेंज एट लॉजिकल लेवल, एज सिंपल. तो ये चेंज करने की नौबत कब आती है फिजिकल लेवल पे, कि यूजिंग अ न्यू स्टोरेज लाइक हार्ड ड्राइव, एसएसडीज एंड माइग्रेशन टू द क्लाउड, कि वो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, और जनरली ये जो चेंजेस किए जाते हैं वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के जुरिडिक्शन में आते हैं, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का वो प्रिविलेज होता है ये सब करने का. मॉडिफाइंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन, स्विचिंग टू डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स, एक्सेस मेथड चेंज किए जा रहे हैं, इंडाइसेस चेंज किए जा रहे हैं, हैशिंग एल्गोरिदम्स चेंज किए जा रहे हैं. तो ये इंटरनल चेंजेस है, और जो बाहर बंदा बैठा है उसको कोई ये चेंज की वजह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए. सो एबिलिटी टू अप्लाई चेंज एट इंटरनल लेवल विदाउट अ नीड टू चेंज हायर लेवल. अच्छा, इंटरनल लेवल के हिसाब से हायर लेवल्स कौन से है? तो लॉजिकल लेवल एक उसके ऊपर है, और उसके ऊपर एक्सटर्नल लेवल है. तो तू जब चेंज इंटरनल लेवल पे करेगा तो लॉजिकल लेवल पे और एक्सटर्नल लेवल को भी चेंज करने की नौबत नहीं आनी चाहिए. ये गारंटी मिलती है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. और क्यों ऐसा करना पड़ता है? तो these are the reasons, possibly these are the reasons why some changes are required to be carried out at the internal scheme. Logical, same story here. Logical data independence is the ability to apply a change at conceptual level, conceptual schema, apply change the logical schema भी कर सकते हैं without changing external view and external applications. हाँ, लॉजिकल लेवल पे अगर चेंज किया तो उसका यूजर का व्यू चेंज करने की नौबत नहीं आनी चाहिए. और ये व्यू मिलता कहाँ से है? तो एप्लीकेशन जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज करके, अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर यूज करके जो बने, उसको चेंज करने की नौबत नहीं आनी चाहिए. दिस इज काइंड ऑफ एन गारंटी व्हाट लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज सपोज टू बी. और सवाल रहा कि भाई लॉजिकल लेवल पे चेंज क्यों करना पड़ेगा? तो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपको एक नया एट्रीब्यूट डालना है, नया कॉलम डालना है. एट्रीब्यूट का मतलब राइट नाउ ना आप उसको एक कॉलम समझो. नया कॉलम डालना है, नया टेबल डालना है, दो रिकॉर्ड्स को मर्ज करके एक बनाना है, एक जो रिकॉर्ड है उसको स्प्लिट करके एक से ज्यादा रिकॉर्ड बनाने हैं. तो ऐसे सारे रीजंस हो सकते हैं जहां हमें चेंजेस लॉजिकल लेवल पे लाने पड़ते हैं. तो अगर ऐसा करते हैं तो ऊपर के डायरेक्शन में चेंजेस करने की जरूरत ना पड़े. इज अ लॉजिकल डेटा. सो व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस? ये टिपिकल क्वेश्चन होता है. व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंस एंड एक्सप्लेन. LDR, the logical data independence, and PDR. This example. तो ये सब कुछ आपका कवर होगा. Are you okay with this? Yes, all clear. So I think my dear friends, this being a very first day, I don't want to stretch too much, or I know this is more of one-sided. I know that you are trying your best to make best out of this. थोड़ा सा theoretical treatment है. नेक्स्ट टॉपिक जो है ER मॉडल है, जहाँ थोड़ा लॉजिकल है, आपको भी मजा आएगा. कुछ ड्रॉ करने की बात होती है, और वो मूविंग फ्रॉम कर
इंट्रोडक्शन, द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल टू द नेक्स्ट मॉड्यूल, थोड़ा सा और एक कुछ डिस्कशन अपना बाकी है. So I hope we'll do this. If you're okay, I can take the discussion ahead. Otherwise, better. And today I'll take a pause. Let me know Ayushi Shah, Ditya Gaikwad, Kavya, Mitesh, Pulkit, So we'll do next time. Riyan, Nimsha, Rishabh. Yeah, yeah. So we'll take up now. We'll stop here. Are you okay with this? Yes, sir. Yes, sir. Chalo, thank you. Thanks, dear. Nice. You are at least you have started slightly giving an acknowledgement. Next time, I hope you are more involved into this. Thank you very much. Take care. Next time, I'll try to make it more interesting. Animi, hello. Hey guys. Yes, इसका sir. ना PDF मैं नेक्स्ट मैं बना के रखता हूँ, और जैसा अपना नेक्स्ट सेशन शुरू होगा ना, तो तुरंत मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा. आर यू ओके विद दिस? सर एक ड्राईव्ह मध्ये पाठवा ना, म्हणजे ड्राईव्ह मध्ये द्या ना. नाही, याच्यातच आपण करू शकतो ना शेअर. हा चालेल सर. म्हणजे I can directly upload here, and you can download it immediately from the meeting itself. ओके सर. Sure, thank you. See you. Bye. बाय सर. थँक्यू सर. Bye, sir. Thank चलो you, बाय. sir. मी करू चेकआउट करू मी. Yes, sir. थँक्यू.